And this is me Vishali. Welcome to my YouTube channel. In this video we will see concept of factorization. So let's get started. Writing a number as the product of one or two numbers. So this is called factorization. Means suppose if we have a 15. So we can write the 15 in the factor of 3, 5. Okay, so this is a 3 is a prime number and 5 is also a prime number. So हम try करेंगे कि जब भी हम किसी नंबर का फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, so we will write factors और factor should be prime numbers. Factors जो होंगे वो prime number होना चाहिए. Suppose we have a 16, so 16 we can write 4 into 4. But if we require a prime number, so we can write 16 2 multiply 2, then product by 2 and then 2. It means 2 when we will write 4 times, so it will be 16. Okay, so now this is the natural number, but if we are talking about the algebraic expression, so first we will write the terms. Suppose we have a 3xy. How can we write the factors of 3xy? So 3 is the factor. We have a 3 factors of this term 3xy. First numeric factor, it means 3. X, the second variable x, and the third we have the algebraic expression. This is the 3xy algebraic expression, and the factor of 3xy x comma factors of, we can write factors of 3xy are 3 comma x comma y. So we can define the factors of an algebraic expression like this. Here we have another term 5x square y. It means here we have factor of this term. 5 is the numeric coefficient. X we have a 2 times, means x multiply x. What do you mean by x square? X square means x multiply itself. 2 times we have to multiply x. So, and the next is y. So how many factors here? We have 5x, xy. We can write the factors of this term like this. Okay, so we can see the next algebra. An expression which is a factor of all the given expression. So this is called the common factor. Suppose if we have the an expression given, here we have a 2 terms. This is the first term and second term. We know that we can define or we can count the term by the plus or minus sign. अगर हमारे पास plus or minus sign है, so we can separate the terms. Suppose we have an expression. For example, we have to count the terms. अगर हमको terms count करना है और हमारे पास ये x square, y square plus z square plus p square अगर लिखा है, so how many terms we have? 1 2 3 4, because terms always separated by plus or minus sign से ही separate करते हैं. But अगर ये हमारे पास terms कितना है? Total number of terms. अगर हम number of terms की बात करें तो वो होंगी 4 here in this expression. But we have to write, suppose हम ऐसा लिख रहे हैं x square multiply y square multiply z square multiply p square. So this is only the one term, because we can write this term like this: x square y square z square and p square. So this is the single term, and here we have a 4 term. So we can separate the terms by using the plus or minus sign. So here we have in the first term, suppose 2x square. So factor of first term 2 multiply x, and in the second term we have only the x, which is the common term. Here we have only the x is common, so we can write the common factor. हमें common factor चाहिए, sorry, not term. So here we have to write common factors of an expression जो given है of 2x square plus x is equals to x. तो ये जब x हमने कॉमन लिया इसमें से, है ना, हम इसमें से x कॉमन लेंगे और यहाँ से भी x कॉमन होगा, तो इनसाइड वी हैव 2x और यहाँ पर रह जाएगा y. सो वी कैन राइट द कॉमन फैक्टर. इट मीन्स जब हमने x यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ भी x कॉमन है, तो x हमने कॉमन लिया, इनसाइड हमारे क्या बचेगा? अगर इसमें से हमने एक x कॉमन ले लिया तो देन वी हैव द 2x रिमेनिंग, और यहाँ से एक x हमने कॉमन ले लिया है, सो ओनली 1 वी विल गेट हियर रिमेनिंग. और प्लस साइन भी है, बिकॉज हियर वी हैव अ प्लस साइन. यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ भी प्लस साइन होगा. सो फैक्टर्स जो कॉमन फैक्टर होगा वो, और आप इस तरफ से उसको फैक्टराइज कर पाएंगे. कॉमन फैक्टर ले लिया, कॉमन फैक्टर इज x, एंड देन व्हेन वी विल यूज द फैक्टराइजेशन मेथड, सो वी विल गेट द x bracket of 2x plus 1. Okay, factorization by regrouping terms means terms
in this method we have to divide the terms of an expression into groups. So हम groups में इसको चेंज करेंगे या फिर हम इसको ग्रुप बनाएंगे इसके. सो हियर ए स्क्वायर वी हैव एंड द ए बी. सो इन दोनों का हम ग्रुप बना लेंगे. इन बी सी और ए सी वी हैव टू मेक अ ग्रुप और फिर हम कॉमन नंबर्स ले लेंगे. सो लेट्स सी ए स्क्वायर वी हैव टू राइट टुगेदर फर्स्ट. अब ए बी को ए स्क्वायर के साथ में लिखेंगे. दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. हम उसको प्लस और माइनस प्लस में और मल्टीप्लाई में हम नंबर्स को आगे पीछे कर सकते हैं. ठीक है. BC and AC here we have. Now check the common factor. अब हम common factor check करेंगे. So yes, we have a common factor A in this term. In this two term we have a A is the common. हमारे पास A common है तो हम A को common ले लेंगे. If we have a 2 means A हमारे पास 2 times है यहाँ पर, तो एक बार A हमने common लिया तो second A we have a remaining. A we have taken in this from this term, so B remaining we have. We have to put the bracket. हमने bracket put up किया. हमने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया, ओपन ब्रैकेट. सो राइट द ओपन ब्रैकेट हियर. प्लस साइन हियर वी हैव. नाउ वी कैन सी द सी इज द कॉमन फैक्टर इन दिस. सो सी टेक आउट द कॉमन variable and b remaining here we have, and inside a is the remaining. So we can see in the bracket we have a same variable. a कैसे भी हम प्लस में उसको लिख सकते हैं. So in the next step we can write like this also कि ये a b है और the commutative, by using the commutative property we can write a plus b. Okay, so now here we have the group. ये जो AB जो A plus B का जो ग्रुप है वो भी कॉमन हम ले लेंगे. So we can take the A plus B common. So we can write A plus B is the common remaining. Here we have A is the remaining. So write A is the remaining plus sign here and C is the remaining. So this is the factors of, ये फैक्टराइजेशन हमने किया है इस टर्म का. So algebraic expression if we have a A square plus BC plus AB plus AC, so we can write the factorization like this: A plus B bracket of, and then second bracket we have a plus C, and between both the bracket we have a multiplication sign because always brackets stand for multiplication. I hope it's clear to you. We have an expression a square plus 8a plus 16, and we have to factorize this expression by using the identities. So we have identities of addition. Addition के लिए एक identity है हमारे पास. If we have a plus b whole square, so we can write a square plus 2ab plus b square. और if we have this whole expression, if we have, अगर हमारे पास ये है तो हम फिर उसको स्टेप से लिख सकते हैं. So we have to use this identity, we have to use this and then solve this expression. तो हम अब expression को use करते हैं. हमने a square लिख दिया प्लस 8a को हमको लिखना है 2ab के टर्म में. मीन्स 8 को स्प्लिट करेंगे 2 ट्वाइस, तो हमको लेकर आना है. हम फिर 2 into 4 कर देंगे और ये हमारे पास a है. So we can write the 8a like this: 2 into 4 into a. मीन्स ये 2 तो फॉर्मूले में है जो आपके पास होना ही चाहिए इन द फैक्टर ऑफ टर्म. एंड प्लस 16 मीन्स b स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है आपको. तो 16 को ऐसा लिखो आप कि स्क्वायर फॉर्म मिले आपको. मीन्स वी कैन राइट द 4 स्क्वायर बिकॉज वी नो दैट 4 स्क्वायर मीन्स 16. तो लिखा a. ओके, नाउ प्लस a प्लस 4 होल स्क्वायर. ठीक है, मीन्स a प्लस 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में a प्लस 4 एंड द होल स्क्वायर वी कैन राइट लाइक दिस. क्योंकि अगर हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन बन जाता है, ये a स्क्वायर आ गया, ये 2 है, ये a है, ये a आपके पास है और ये b है. ठीक है, फिर आपके पास b स्क्वायर है. मीन्स आपके पास a स्क्वायर और b स्क्वायर ये है, तो आपके पास एक आइडेंटिटी क्रिएट हो गई है. आइडेंटिटी आपकी हो जाती है a प्लस b का होल स्क्वायर. सो वी कैन राइट लाइक दिस. हमने उसको आइडेंटिटी बना दिया. टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, हियर वी हैव द सेकेंड टर्म और अनदर मेथड. हियर वी हैव द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. हमने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है इन टर्म्स ऑफ, हमको ऐसे स्प्लिट करना है कि जैसे सपोज यहाँ 1 है. सो 1 और 16 का मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मीन्स जो मल्टीप्लाई करने पे आता है 16, तो वही हमको नंबर लेना है जिनको प्लस करने पे तो हमें 8 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 16 इंटू 1. तो 16 इंटू 1 कितना होता है? 16 ही होता है. और हमको उनको प्लस करने पर क्या मिलना चाहिए? एडिशन उनका मिलना चाहिए 8. तो ऐसे कौन से नंबर है? सो वी कैन टेक 4 and 4. यस और नो? व्हेन वी विल मल्टीप्लाई द नंबर मीन्स 4 इंटू 4 भी हमारे पास 16 होगा एंड 4 plus 4 we have 8. So we can write the splitting the middle term. We can use the method. So हमने लिख दिया 4a plus 4a और यहाँ पर वो हो जाता है
16 यहाँ मिलेगा हमें। तो हमें ऐसे ही स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को कि हमें उसके प्लस करने पे तो मिडिल वाला टर्म मिले और उसको मल्टीप्लाई करने में ये जो 1 और 16 मीन्स ए स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो मिले, उन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। जो ये वाला है 16 और 1 उनके मल्टीप्लाई करने को मिलता है। सो लेट्स सी, अब इसमें ए स्क्वायर और 4a में हम कॉमन फैक्टर लेंगे, मीन्स हम रीग्रुपिंग जो मेथड है वो हमारा देखेंगे। हमने रीग्रुप कर दिया, ए हमारे पास कॉमन है, फर्स्ट ये जो हमारे पास ग्रुप बना हुआ है तो ए कॉमन लिया, इनसाइड वी हैव ए रिमेनिंग। अब ये 4a वाला है, सो इसमें हमने a कॉमन लिया है, सो रिमेनिंग 4 वी हैव। अब सेकंड टर्म में भी हमारे पास ये जो a + 4 है यही बनेगा, सो वी कैन से अब यहाँ पर 4 कॉमन है, ठीक है, 4 कॉमन ले लिया हमने। और 16 के प्लेस पर आप चाहें तो 4 × 4 भी लिख सकते थे, हमने 4 × 4 कर दिया। अच्छा, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, एक 4 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ जो है a बचा हमारे पास और सेकेंड टर्म में 4 रह गया, ठीक है। अब a + 4 कॉमन है, सो a + 4 को हमने कॉमन कर लिया, a + 4। अब रिमेनिंग क्या रह गया, एक ये a है और यहाँ पर 4 है, सो रिमेनिंग वी हैव a + 4। अब अगर a + 4 a + 4 दो बार है, मीन्स अगर सपोज हमारे पास x है और फिर मल्टीप्लाई x है, सो वी कैन राइट x², तो हम यहाँ पर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो a + 4 होल स्क्वायर वी कैन राइट। दिस इज द last step of the solution. It will be the answer. I hope it's clear to you. The next concept we have to we have the division of algebraic expression. तो हम divide कैसे करेंगे if we have a algebraic expression. So suppose we have a 15x cube. X cube here we have like a numerator. Suppose हमारे पास divide है तो हम इसको fraction form में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15x³ अपॉन 5x। बट अब डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते, वी शुड नो अबाउट द फैक्टर्स इन कॉमन। सो अब क्या कर, या तो आप इसको एक्सपोनेंट जो वाला आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपली फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसके फैक्टर करेंगे 15 के, तो 3 × 5 हम फैक्टर कर दिया। x³ का अगर हम एक्सप्रेशन, ये जो x³ है हमारे पास, उसको हम फैक्टर्स में लिखेंगे तो x × x × x, so we have a x³। And now here 5 and x. Here we have multiplication of between the variable and constant. अगर ये constant term है 5 और ये न्यूमेरिक term है और ये वेरिएबल term है हमारे पास, तो दोनों के बीच में जो लेटरल और ये जो term है हमारे पास, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है। अब हम कैंसिल कर देंगे बिकॉज यस वी नो दैट कि यहाँ पर जब डिवाइड करना है तो सिमिलर जो है हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम कैंसिल कर सकते हैं। हमने 5 को 5 से कैंसिल किया, x को x से कैंसिल किया, द रिमेनिंग वी हैव x multiply x into x. तो ये x into x, the next step we can write 3x² because here we have 2 times x, तो पावर क्या हो जाएगी 2। if we have written in the multiplication, अगर suppose x 4 times लिखा है तो हम x to the power of 4 लिख देते हैं। if we have the x suppose 1 time present, so we can write x only. if we have x present 2 times in a multiplication, so we have to write 3x². it will be the final answer of this division. I hope it's clear to you. So in this method, division of a polynomial by a monomial. Polynomial means more than we have a 3 terms, okay, and then polynomial means single term we have. तो अब हमको डिवाइड करना है उसको, और यहाँ पर हमारे पास ट्राइनोमियल है, लाइक हमारे पास ये ट्राइनोमियल है, बट ये कंडीशन आपको पोलिनोमियल में भी चल जाएगा। जब आपके पास मोर देन 3 टर्म्स होगी तब भी आप ये वाली मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो हमको सभी को फैक्टर फॉर्म में लिखना है, ओके, सो वी हैव टू राइट लाइक दिस। हम पहले तो इसको यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं और 5x हमने अपॉन में लिख दिया, मीन्स हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दे रहे हैं। अब 5x³ मीन्स वी कैन राइट 5 into x into x into x। ये हमने इस टर्म को पहले फैक्टर फॉर्म में लिखा है, फिर प्लस लगाया 3x² को हम फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स 3x कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, मीन्स x का स्क्वायर है। फिर हमने प्लस लगाया, 10 को हम स्प्लिट करेंगे, फैक्टर फॉर्म फैक्टराइज करेंगे, सो 5 into 2 मीन्स 2 into 5 और ये x। अब हमारे पास सारे जो फैक्टर्स हैं वो किस फॉर्म में है, प्राइम जो नंबर्स है वो प्राइम नंबर है, और x में जो है वो डिग्री यहाँ पर सिंगल डिग्री मीन्स लीनियर फॉर्म में मिल गया हमको। अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन टर्म्स है उसको बाहर ले लेंगे। 5 क्या सभी में कॉमन है, नो, 5 फर्स्ट वाली टर्म में कॉमन था और लास्ट वाली टर्म में, बट 5 मिडिल टर्म में नहीं है, सो ये कॉमन नहीं है। अब सिर्फ x को चेक करो, x हमारे पास यहाँ भी है, सेकेंड टर्म में भी है और लास्ट टर्म में भी है, तो ओनली x वी हैव अ कॉमन, 5 इज नॉट, वी डोंट हैव अ कॉमन। तो x हमने कॉमन लिया, हम इनसाइड द ब्रैकेट हम मेंशन करेंगे, हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, हमारे पास रह गया 5x और x मीन्स x का स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव
यहाँ पर सेकंड टर्म में हमारे पास रहा 3 और x, क्योंकि एक जो ब्रैकेट ये जो x है हम आउटसाइड ले जा चुके हैं हर टर्म से। सो प्लस अब यहाँ से भी x को हमने आउटसाइड ले लिया है। सो वी हैव हियर 2 into 5, again we can write 10, we can write like this। अब ये हो गया हमारे पास 5x, so x we can cancel by x and the remaining we have the 5। और अगर 5 को भी कैंसिल करना है तो सपोज हम अब लिख लेते हैं 5 और ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 और अब हमारे पास 5 रह गया। अच्छा 5 को भी अगर हमको कैंसिल करना है, क्योंकि हमको इसको लीनियर फॉर्म में डिवाइड ही करना है कम्प्लीटली, हमें डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू राइट इन द नेक्स्ट स्टेप। हमने 5 को कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर प्लस इसको अगर हमको 3x को यहाँ पर 5 हमको कॉमन चाहिए तो हमारे पास एक मेथड होता है कि 3x मल्टीप्लाई कर दो 5 से और डिवाइड कर दो 5 से। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हमारे पास 5 आ गया और डिवाइड में भी 5 आ गया। मीन्स ऊपर जो ये 5 वाला है ये तो हम कॉमन में निकाल लेंगे और जो नीचे अपॉन में है वो हमारे पास अपॉन में रह जाएगा। मीन्स 3/5 और ये x प्लस 10 मीन्स क्या है हमारे पास 5 into 2, तो हमारे पास 2 फिर रिमेनिंग रह गया और अपॉन में हमारे पास 5 है ही। 5 से कैंसिल करेंगे 5 को तो जो लास्ट हमारा टर्म होगा x स्क्वायर प्लस 3/5x प्लस 2, इट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ द डिविजन। I hope it's clear to you. Suppose we have this type of question and we have to divide this expression by the other expression y plus 5. So first of all we have to write like this। हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे, मीन्स अपॉन करके लिख देंगे y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 एंड देन y प्लस 5। अभी इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है। अब हम इस पे बात करते हैं, इसको फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग द मिडिल टर्म कर ले, आइडेंटिटी आप यूज कर लें, बाय यूजिंग हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेते हैं। अब हमको 7y को इस टाइप से स्प्लिट करना है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो 1 और 10 का मल्टीप्लाई करने पे जो मिल रहा है वो उसके नंबर को मल्टीप्लाई करने पे मिलना चाहिए और एडिशन करते हैं तो 7 मिलना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, तो हम ले लेते हैं कि ऐसे नंबर है 2 और 5। यस, जब 2 और 5 को प्लस करते हैं तो 7 मिलता है और 2 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 10 मिलता है। तो हम वो नंबर लेंगे, स्प्लिट करेंगे 7 को 2 और 5 के टर्म्स में। तो हमने लिखा y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इसके साथ कोफिशिएंट नहीं तो हम 1 यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने 1 ले लिया था। अब y स्क्वायर ले लिया, 7 के प्लेस पर हम यहाँ तो 2y लिखें या 5 आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने पहले लिख दिया 2y प्लस 5y एंड 10 एज इट इज वी है, और वी कैन राइट द 10 को भी हम इस टर्म्स में लिख सकते हैं 2 into 5, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एंड देन y प्लस 5 एज इट इज वी हैव इन द डिनोमिनेटर। इन द नेक्स्ट स्टेप, सपोज नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कॉमन फैक्टर लेंगे, तो हम रीग्रुपिंग टर्म्स मीन्स हम रीग्रुपिंग जो मेथड है वो वाला करेंगे। हमने ग्रुप बना दिया। अब y स्क्वायर प्लस 2y में से y और y कॉमन है इधर, तो एक y हमने जब कॉमन लिया तो इनसाइड द ब्रैकेट एक y सिंगल y रह जाएगा और 2 के साथ हमारे पास कोई वेरिएबल टर्म नहीं रहेगी क्योंकि y ऑलरेडी बाहर आ चुका है। प्लस अब इस 5y और 2 into 5 में से 5 कॉमन है, 5 हमने कॉमन लिया, सो इनसाइड द ब्रैकेट यहाँ y रह जाएगा एंड 2 हियर वी हैव, एंड अपॉन में हमारे पास रह जाएगा y plus 5 जो एज इट इज वी हैव टू राइट डाउन। नाउ we can see y plus 2 and y plus 2 also common in the expression, so y plus 2 we can take as a common factor। हमने कॉमन ले लिया तो अब हमारे पास क्या रहेगा, रिमेनिंग जो रहेगा वो y और प्लस में 5। so in the down side we can write y plus 5। हमने y plus 5 डाउन साइड था वो एज इट इज कॉपी डाउन किया है, फिर y plus 5 से ये होल जो टर्म है वो एक्सप्रेशन पूरा कैंसिल हो जाएगा। so the remaining last step will be y plus 2, so final answer will be y plus 2। Suppose we have a question, find x square plus 5x plus 4, find the value हमें find out करना है। if we have a substituting method है हमारे पास, जब x equals to -5 put up करना है in the algebraic expression x square plus 5x plus 4। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम x की जहाँ x की वैल्यू होगी या जहाँ x लिखा होगा वहाँ पर -5 put up करेंगे। so let's start। हमने -5 in the place of x रिटर्न किया, स्क्वायर एज इट इज, प्लस 5 ये लिखा है, जब हमें x की वैल्यू पुटअप करनी है तो हम ब्रैकेट के अंदर पुटअप करेंगे -5 एंड प्लस 4 वी हैव हियर वी हैव 4 इज द कांस्टेंट टर्म, नो वेरिएबल टर्म्स विद द 4, सो राइट एज इट इज। अब हमने 5 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर होता है 25, जब माइनस का स्क्वायर करते हैं, माइनस की पावर जब इवन नंबर होती है तो वो पॉजिटिव होगी। ओके, सो माइनस का जब स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, सो राइट एज इट इज 25 we have to write and then no sign
नो माइनस साइन विद द 25। अब ये करेंगे, पहले प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज ब्रैकेट स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है, सो वी विल गेट माइनस, और 5 5 हो जाएगा 25, ओके, एंड प्लस 4। वी नो दैट जब भी हमारे पास सेम नंबर विद द प्लस साइन और माइनस साइन होता है, तो वी कैन कैंसिल इट, मीन्स इट विल गिव 0। सपोज वी हैव अ +2 एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द 2 फ्रॉम द -2 अगर हमें है हमारे पास, तो +2 है, और दोनों को हमें सॉल्व करना है। सो यस, वी विल गेट 0, सो नथिंग वी हैव टू राइट इन द नेक्स्ट स्टेप, एंड ओनली 4 वी कैन राइट एज द आंसर। सो द फाइनल आंसर विल बी 4, मीन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।